NEP and to celebrate NEP, but it delves deep into the evolution of higher education in India through history. Ancient universities such as Takshashila and Nalanda once attracted students from all over the world and helped develop some of the brightest minds. However, invasions, annexation, loot, and colonization had a significant impact on India's knowledge capital. The alterations in teaching buried the original and enriched Indian educational system. Although we gained independence from the British rule in 1947, we continued to uphold English education until the game-changing National Education Policy of 2020 was released. In recent years, the Indian government, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, has taken significant initiatives to improve the education sector and make it more progressive. Formally felicitate Dr. Ashwin Fernandes. To share some critical reflections of an extraordinary book that Dr. Ashwin Fernandes has produced, titled India's Knowledge Supremacy, The New Dawn. This event is also very special, as he mentioned in his early remarks, that he was deeply inspired by his meeting with the Honorable Education Minister, Mr. Pradhan, and I'm not surprised. Every meeting that many of us have with him is deeply inspiring for a number of reasons, and I say this with a lot of sense of responsibility, that he is one of those persons who is so ready and willing to take suggestions and to also accept criticism and to work towards improving and transforming the education sector. And he's a natural consensus builder and something that we don't see often, especially in the political brass. So I'm so fortunate that we are all here in the midst of the minister. And as you know, he has an extremely busy schedule, and despite all of that, at very short notice, he accepted this invitation and he's here with us for the launch of the book itself. Coming to the Can we have a round of applause for the book, please? So many congratulations, and also thanks to Dr. Ashwin कि उन्होंने मौका दिया कि मुझे इस बुक का foreword लिखने के लिए. So thanks Ashwin for giving me an opportunity for writing the foreword of this book. And जैसा कि अभी डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि this book पूरा जर्नी ट्रैवर्स किया, जैसे फ्रॉम नालंदा टू एनईपी, नालंदा से लेके एनईपी तक इस बुक में सब कुछ है. नालंदा से शुरू होती है. इट टेल्स कि नालंदा 4th सेंचुरी बीसी में बनी थी, और जब 7 AD में नालंदा में कितने करीब 2000 टीचर्स थे, 10,000 स्टूडेंट्स थे. और उस समय जो स्टूडेंट्स थे कहाँ से थे? चाइना से, इंडोनेशिया से, कोरिया से, जापान से, पर्शिया से, टर्की से. और वो क्या पढ़ने आते थे हमारे देश में? बुद्धिस्ट स्टडीज़, फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, एक्स ऑफ ऑल. सो इस तरह का समृद्ध हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम था उस समय पे. धीरे धीरे नालंदा को थोड़ा सा कहते हैं कि उसमें 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उसकी लाइब्रेरी में, पर एक फायर में 12th सेंचुरी AD में वो सब के सब जल गई. बहुत सारे इन्वेजन्स हुए. 16th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए. धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने एक प्लान स्ट्रैटेजी के तहत हमारी
पाठशालाएं ख़त्म की, हमारे गुरुकुल ख़त्म किए, रादर एक कंटेम्प्ट पैदा किया लोगों के बीच में कि इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा अच्छा है ब्रिटिश हायर एजुकेशन सिस्टम, टू द एक्सटेंट कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय हमारा जो लिटरेसी रेट था वो था 12%। आज 78% है, पर उस टाइम 12% लिटरेसी रेट था, जो कि ऐसा देश था जो कि बहुत समृद्ध माना जाता था, जहाँ सभी लोग बहुत ज्ञानी माने जाते थे। सो दिस वाज द इफेक्ट। और उसके बाद बहुत सारा कुछ हुआ कि 1947 के बहुत सारे कमीशन आए, राधा कृष्णन कमीशन आए, कोठारी कमीशन आया, बहुत सारी रिपोर्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, 1968 की आई, 1986 की आई, पर जो ये 2020 की नेशनल पॉलिसी है NEP 2020, दिस वाज अ पॉलिसी जिसको कहते हैं कि इट ब्रॉट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द हायर एजुकेशन इकोसिस्टम। बहुत सारी इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, एवरीबडी नोज अबाउट द रिकमेंडेशंस की, मल्टीडिसिप्लिनैरिटी की बात की, कि 64 कला संपूर्ण एजुकेशन, जो हमारे शुरू में हमारे इतिहास में बताया जाता था कि हमारी शिक्षा 64 कला संपूर्ण थी। वो 64 कला ये नहीं था कि सिर्फ एक डांस म्यूज़िक, उस 64 कलाओं में म्यूज़िक भी था, डांस भी था, और मेडिसिन भी था, और इंजीनियरिंग भी था, आर्किटेक्चर भी था, सभी तरह की कलाएँ थी। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम था। हमारे NEP के बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं जो कि बाहर के लाइक बहुत सारी हमारी मीटिंग्स होती हैं फॉरेनर्स के साथ भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी। सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू NEP कि हमारा ABC क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हाउ यू आर डूइंग दिस क्रेडिट फ्रेमवर्क। सो बहुत सारा लोगों के बीच में उत्साह है, और किस तरह से NEP में कहा गया कि कैसे इंटीग्रेट करना है हायर एजुकेशन सिस्टम में इंडियन नॉलेज सिस्टम को। लाइक 2 दिन पहले ही हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बात हो रही थी। निकल के आया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स अगर हमें अपनी यूनिवर्सिटी सिस्टम से मिलाना है, तो उसको एक अलग से पेपर या अलग से कोर्स करके नहीं आएगा, उसको सभी पेपर्स में हर एक में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, केस स्टडीज़ की तरह, एग्जाम्पल्स की तरह, जिससे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम हमारे जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक आत्मसात हो सके, उसमें एक तरह से समझ में आए लोगों को कि हाँ, अवर स्टूडेंट शुड बी प्राउड ऑफ इट, जिसको हम कहते हैं कि ग्रैंड इंडियन नैरेटिव। UGC के पूर्व चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, AIU के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर पंकज मित्तल जी, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर C राजकुमार जी, और आज की इस कार्यक्रम की मुख्य केंद्र बिंदु सूत्रधर मेरे मित्र डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जी, जिन्होंने 39 साल में पहला किताब लिखा है। मैंने धीरे से उनको पूछा, थोड़ा किताब को मैंने देखा और पूछा कि अश्विन जी आपकी उम्र क्या हुआ? 39। और उनको आज चौहान साहब ने आशीर्वाद दिया। और एक अच्छे टीचर ये कभी नहीं कहता कि तुमने अच्छा नहीं किया, ये कहा जाता है कि और अच्छा करो, और अच्छा कर सकते हो। इसीलिए मैं अश्विनी जी को एक मित्र के नाते, भाई के नाते, प्रोफेसर चौहान की उस अपेक्षा को हम सभी की ओर से दोहराता हूँ। आपका ये पहला किताब नहीं होनी चाहिए, ये किताब शुरुआती है, और आपने हिम्मत दिखाई एक ऐसे विषय से अपना विचार को भविष्य के लिए और वर्तमान तथा भविष्य के लिए पीढ़ी परिवर्तन की कामों में प्रेरित करने के लिए भारत की ज्ञान परंपरा की महत्व, सुप्रीमासी एक मेरे दृष्टि से थोड़ा अधिक बात हो जाता है। भारत की ज्ञान परंपरा कभी किसी की ऊपर सुप्रीमासी दिखाने के लिए तो कभी नहीं था। भारत की ज्ञान परंपरा दुनिया को संभालने के लिए दायित्व लिया है। इसीलिए हमने इस बार भी G20 की थीम बनाए है वसुधैव कुटुंबकम। जो समाज पूरा विश्व को, पूरा मानव को एक परिवार मानता है, वो किसी के ऊपर सुप्रीमासी नहीं दिखा सकता है। इसीलिए मैं एक किताब की रीडर के नाते अश्विनी जी, आपको ये मेरा ओपिनियन है, मेरा निजी ओपिनियन है। नथिंग टू शो, नॉट टू, डोंट हैव टू शो एनीबॉडी सुप्रीमेसी। हम भारत की लोग जब जब आदि अनंत काल से अब तक
उत्तर और समाधानी समाज की लोग हैं और हमारी ज्ञान के आधार पे हमने इसको किया है। इंडिया डीप इनटू इंडिया इज ए नॉलेज सोसाइटी। दुनिया को अगर आज के समय में 21वीं सदी में हम लोग थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करते हैं, परखते हैं, तो सभी समय में सभी ने कहा नॉलेज इज द लाइट, एजुकेशन इज द अप्लाइड पार्ट ऑफ नॉलेज। ये सभी के आधार पर समाज की गति निरंतर रही है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, शुभेच्छा देता हूं। आपने इंडियन नॉलेज पावर हाउस के बारे में, नॉलेज इकोसिस्टम के बारे में आपने एक हिम्मत की है, एक विचार लिखने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। थोड़ा बहुत जितना किताब को मैं समझने का कोशिश किया, ये राजकुमार जी ने उसको इंटरप्रेट किया, एक प्रकार से थोड़ा बहुत बुक रीडिंग भी किया। मित्र हैं तो उन्होंने उनको पहले दी था किताब, तो उन्होंने उसको पढ़ा और उसको हम सभी को थोड़ा मौका दिया समझने का। लेकिन मैंने जितना पढ़ा अश्विनी जी, उसमें और बहुत चीज रह गया है, और बहुत चीज रह गया। लेकिन आपको बधाई तो दे ही रहा हूँ इस अच्छे अटेम्प्ट के लिए। लेकिन मैं अगर 2-3 विषय को कहूँ कि भारत की ज्ञान परंपरा की कोई प्रमाण मिलती है तो वेद से मिलती है, उपनिषद से मिलती है, जिसकी आयु तिलक जी ने कहा कि लगभग 8000 साल पुरानी। ऐसे भी विचारक है जो कहते हैं और पुरानी है। और जिस वेद में, उपनिषद में ज्ञान के सभी आयामों के ऊपर, पंकज जी ने अपने विषय कहते हुए इस विषय को उल्लेख किया, इंडियन नॉलेज सिस्टम ये कोई हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स या एआई जैसे टॉपिक नहीं है। ब्रह्मांड की सारा आयामों के बारे में इस देश में रहने वाले लोगों की जो नॉलेज लेवल था वो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसलिए उसमें विज्ञान था, समाज विज्ञान था, चिकित्सा शास्त्र था, साहित्य था, ग्रामर था, मैथमेटिक्स था, एस्ट्रोनॉमी था, फिजिक्स था, जियोफिजिक्स था। सारा विद्याओं की समूह को भारतीय ज्ञान परंपरा की अंतर्गत कहा जाएगा। और ये प्रमाण, अगर मैं एक उदाहरण दूं, अभी विश्व की शासन प्रणाली जो एक सामाजिक विषय है, सामाजिक अर्थनैतिक, उसको आज आधुनिक यूनिवर्सिटी की भाषा में पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। शासन प्रणाली कैसे होनी चाहिए? एक छत्रवाद होनी चाहिए, एक कलेक्टिव मिलिट्रीइज्म होनी चाहिए, हो सकता है, या एक कम्युनिज्म, एक कम्युन मॉडल भी हो सकता है, कुछ लोग चलाएं, सभी के लिए कुछ लोग चलाएं, या एक चर्चा विमर्श के उपरांत एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से समाज की चिंता करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाए जिसकी नाम गणतंत्र है, प्रजातंत्र है।